Hi students, welcome back. Uh, Last time we have studied the meaning and importance of physical fitness, first chapter of class 12 of subject physical education. आज हम डिस्कस करेंगे the second topic of the same unit, first unit का second topic, components of physical fitness. Guys, as we know, जो हमारा physical fitness है, it is the organic fitness of an individual. There are different components of physical fitness combined. जब हम उन सब components को एक साथ combine करेंगे तो तभी हम लोग कह सकते हैं कि कोई इतना physically fit है. Different games जो हैं उसमें different level of fitness level चाहिए आपको compete करने के लिए. और सेम अगर आप इस गेम में कैसा जॉब है आपका, उसी के अकॉर्डिंगली आपका फिटनेस लेवल के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेट किए जाते हैं किसी भी गेम में. तो जितनी भी हमारी फिजिकल फिटनेस है, अगर हम लोग को उसको इम्प्रूव करना है, उस फिटनेस को हम लोग सिस्टमैटिक प्रोसेस से इम्प्रूव करते हैं. लेकिन उस सिस्टमैटिक प्रोसेस से हम जो कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस के, उनको इम्प्रूव करेंगे, तभी जाके ओवरऑल फिटनेस आपका इम्प्रूव होगा. तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस जो हम लोग इलैबोरेट करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज स्ट्रेंथ, सेकंड एंड्योरेंस, थर्ड स्पीड, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन कि ये कंपोनेंट्स में है क्या, स्ट्रेंथ होती क्या है, कितने टाइप की स्ट्रेंथ रहती है. तो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेंथ. Strength means the muscular force exerted to overcome a resistance. Means कि आपकी मसल्स की वो ताकत, वो पावर जब आप यूज करते हो किसी भी रेजिस्टेंस मीन्स कोई भी वेट उठाना, किसी वेट को ओवरकम करना या रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, that ability is called as strength. In simple words, we can say that the ability of your muscles to exert force to overcome the resistance is known as strength ability. Then again, strength is required in all the sports, but कितना strength चाहिए, that depends upon the nature of the activity and the work to be done in that competition or in that game. तो उस पे आपको कौन सी strength चाहिए, कितनी strength चाहिए, आपके गेम के एक्टिविटीज पे या गेम के वर्कलोड पे डिपेंड करेगा. तो then strength is divided into two. There are two types of strength. First is static and the other one is dynamic. We will again discuss, इसको elaborate करके discuss करेंगे. Then again, dynamic strength is divided into three types of strength. First one is maximum strength, second one is explosive strength, and the third one is strength endurance. Once again, मैं आपको बताता हूँ confusion ना रहे. Strength two parts में divide की गई है. Two types of strength are there. Static strength and dynamic strength. And again, dynamic strength is divided into three types of strength: maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Okay, guys. Now, what is static strength? The word itself define या आपको बताएगा कि static strength है क्या. Static means stable. जब आप अपनी strength apply करेंगे without moving your body, that is called as static strength. This type of strength is also called as isometric strength. Isometric means when you exert the force, आप किसी चीज पे force exert करेंगे, but at the same time आप move नहीं करेंगे. Examples आप उनका बता सकते हैं, जैसे pushing against the wall. See, अगर मैं इस board को push कर रहा हूँ and मैं अपनी force को exert कर रहा हूँ, muscles exert कर रहे हैं force को, but मेरा body stable है, static है. जो मेरा मसल्स का लेंथ है दैट इज सेम, वो चेंज नहीं हो रहा, वो वेरी नहीं हो रहा, दैट इज योर स्टैटिक स्ट्रेंथ. अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आपके शॉटपुट में, आपका वेट लिफ्टिंग में ये जो स्ट्रेंथ है ये यूज की जाती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ. ओके गाइस, द सेकंड वन इज डायनामिक स्ट्रेंथ. डायनामिक स्ट्रेंथ मींस व्हेन यू यूज द स्ट्रेंथ बट आपकी बॉडी मोशन में रहेगी, आपके मसल्स की लेंथ वेरिएशन में आएगी, दैट इज योर डायनामिक स्ट्रेंथ. क्या आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं while moving, that is your डायनामिक स्ट्रेंथ.
Again, strength is dynamic strength is divided into three. First one is maximum strength. Maximum, again ये वर्ड भी आपको बताएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है। जब आप एक ही एफर्ट में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा मस्कुलर स्ट्रेंथ आप पुट कर देते हैं, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एग्जांपल, लिफ्ट्स इन वेट लिफ्टिंग, जब आप कोई भी लिफ्ट करते हैं, आप स्नैच कर रहे हैं, आप क्लीन कर रहे हैं, ओके, आप शॉर्टकट में थ्रो कर रहे हैं, जैवलिन में थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना मैक्सिमम 100% स्ट्रेंथ का यूज करते हैं एक सिंगल अटैक में, ताकि आपको बेटर रिजल्ट आए, दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सेकंड वन इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मींस आप स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं बट बहुत स्पीड से, क्विकली आप उसको यूज कर रहे हैं, दैट मींस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। The example again is you're jumping, okay, then again your lifts, जब आप लिफ्ट्स कर रहे हैं, जब आप ओलंपिक लिफ्ट्स कर रहे हैं, आप क्लीन कर रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट रहता है बहुत तेज रहता है, स्पेसिफिक रहता है। आप एकदम से लिफ्ट करते हैं, ओके, आप अपने नीज तक लाते हैं, देन अगेन यू पुल फ्रॉम योर हिप एंड देन रैक ऑन योर शोल्डर एंड देन स्नैच। तो ये सब आपका एक्सप्लोसिव मूवमेंट के अंदर आएगा। आप क्रिकेट में अगर आप थ्रोइंग की बात करें, आपको एक ही तेज थ्रो करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक्सप्लोसिव पावर, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करोगे। दैट इज स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस मींस कि आप ये दो फिटनेस के कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, वन इज स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज एंडोरेंस। स्ट्रेंथ ताकत, एंडोरेंस कि आप थकने के बाद भी कितनी ताकत लगा रहे हैं। अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप थक गए हैं बट आपको फिर भी स्ट्रेंथ लगानी है, तो ये एबिलिटी है कि आप थकने के बाद इवन आफ्टर गेटिंग द फटीग यू आर स्टिल यूजिंग योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। द एग्जांपल फॉर स्ट्रेंथ एंडोरेंस इज योर पुशअप्स। जब आप पुशअप्स करते हो तो यू यूज योर स्ट्रेंथ, आप थकते भी हो, से कोई 10 पुशअप्स के बाद थक रहा है, कोई 15 पुशअप्स के बाद थक रहा है, बट स्टिल ही वांट्स टू कंटिन्यू। तो अगर उसका स्ट्रेंथ एंडोरेंस अच्छा होगा तो वो थकने के बाद भी उसके मसल्स वो स्ट्रेंथ जनरेट करेंगे, वो पावर जनरेट करेंगे कि आप वो पुशअप्स कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके सिटअप्स हैं तो आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, स्ट्रेंथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड अगेन डायनेमिक इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। पॉज। Okay. Now guys, the second component of fitness is endurance. Endurance means it's an ability to continue the work even under the condition of fatigue. Means आप थकने के बाद भी जब भी अपनी कोई एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हो तो बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी। अगर आपका एंडोरेंस लेवल नहीं है, ऑब्वियस है, जब आप कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप थकेंगे, बिकॉज कि आपकी एनर्जी लॉस होगा, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशंस होंगे आपके बॉडी में, और जितनी एनर्जी आपकी निकलती जाएगी उतनी आप थकना शुरू हो जाएंगे, तो यू विल फील रेस्टलेस, यू विल फील फटीग। तो अगर आप उस फटीग की कंडीशन में भी यू कंटिन्यू योर एक्टिविटीज, यू कंटिन्यू योर कंपटीशन, यू कंटिन्यू योर पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन, दैट इज योर एंडोरेंस। अगेन मैं आपको सिंपल 2 लाइनों में इसका मीनिंग अच्छे से बता देता हूँ फिर से, लिसन केयरफुली। एंडोरेंस इज एबिलिटी टू कंटिन्यू द वर्क, टू कंटिन्यू द एक्टिविटी इवन अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। थकने के बाद भी आप जब अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हो, दैट इज योर एंडोरेंस एबिलिटी। अगेन एंडोरेंस इज डिवाइडेड इनटू 2. Short term and long term. There are 2 types of endurance. One is short term and the second one is long term. Short term means this activity is also called as anaerobic activity. Anaerobic means in such type of activity, in such type of endurance, आप वर्क करते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्योंकि आप जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो योर मसल्स नीड्स ऑक्सीजन। जब तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पर्टिकुलर मसल जो रहेगा वो प्रॉपर्ली नहीं करेगा। तो ये टाइप के एंडोरेंस में क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म टाइप के एंडोरेंस में आपको कंटिन्यू
जो सप्लाई है किसकी ऑक्सीजन की वो नहीं मिलती, दैट इज एनारोबिक, कि आपको कंटिन्यू सप्लाई नहीं मिलेगी, लेकिन आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए यू हैव टू डू द एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज योर शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, एनारोबिक एंड्योरेंस. This is again divided into three, 1, 2 and 3. Short term endurance again divided into three, that is short, medium and long. Got it? Short term endurance, medium term endurance and long term endurance. Or we can say that short anaerobic, medium anaerobic and long anaerobic. The short anaerobic is less than 25 seconds, 25 seconds to say 60 seconds, and from 60 seconds to 120 seconds. Means वो एक्टिविटी जो लेस देन 25 सेकेंड्स के लिए आप करोगे, दैट इज योर, आप उस टाइप की एक्टिविटी में अपना जो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है उसको यूज कर रहे हो, शॉर्ट एनारोबिक एंड्योरेंस. कोई भी एक्टिविटी जो 25 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स के लिए आप खेल रहे हो या कर रहे हो या पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप अपना जो मीडियम एनारोबिक एंड्योरेंस है उसको यूज कर रहे हो. देन योर लॉन्ग मींस 60 to 120 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट से 2 मिनट तक आप कोई भी एक्टिविटी अगर कंटिन्यू कर रहे हो इन absence of oxygen, in anaerobic endurance, that comes under long anaerobic activity, that is the third form of short term activity. Now we will switch over to the other type of endurance, that is long term endurance. Long term endurance means you continue your activity for a longer period of time but in presence of oxygen. Just make sure short term means anaerobic and long term means aerobic. Anaerobic means you have to do the activity in absence of oxygen, and in long term activity you have to work in presence of oxygen. आपके मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी और यू विल वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपके मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई वो मसल्स वर्क फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे आपके मसल्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क करेंगे. इसका एग्जांपल है आपकी क्रॉस कंट्री रेसेस है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वॉक है, आपकी मैराथन रन्स है, वो सब आपके लॉन्ग टर्म के अंडर आएंगे. शॉर्ट टर्म्स में जैसे मैंने बताया शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जितनी भी हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, they all come under short distance. Long distance again divided into three: small, medium and long. Again divided into three. Long term में similarly short term की तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है टाइमिंग का कि आप कितने देर तक कंटिन्यू एक्टिविटी करेंगे, दैट कम्स इनटू शॉर्टर पीरियड ऑफ 2 to 8 minutes, 8 minutes to 30 minutes, then more than 30 minutes. कोई भी अगर एक्टिविटी शॉर्ट लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी एक्टिविटी जब हम 2 मिनट से 8 मिनट तक कंटिन्यू करते हैं, जैसे हम लोग 8 मिनट तक भाग रहे हैं, दैट इज कम अंडर शॉर्टर एंड एरोबिक एक्टिविटी. दैट कम्स द मीडियम, जब हम 8 मिनट और 30 मिनट के बीच में कोई भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंटिन्यू खेल रहे हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज योर मीडियम टाइप ऑफ activity, medium type of endurance. And the last one is longer. Longer means more than 30 minutes. जब आप कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको लॉन्गर एरोबिक कैपेसिटी चाहिए. लॉन्गर टाइम के लिए आपको एंड्योरेंस का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा जब आप किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो. एग्जाम्पल ऑलरेडी कोर्ट में कर चुका हूँ. योर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, योर मैराथन रेसेस, योर लॉन्ग डिस्टेंस वॉक, योर लॉन्ग डिस्टेंस जॉगिंग. सपोज आप मॉर्निंग में 1 घंटा अगर जॉग कर रहे हैं तो दैट मींस योर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस एबिलिटी इज वेरी गुड. दैट्स व्हाई कि आप 30
पीरियड से ज़्यादा आप अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। पॉज। ओके गाइस, आज का सबसे लास्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, दैट इज स्पीड। स्पीड से जैसे आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि स्पीड का क्या मतलब है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा और अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि स्पीड है क्या। स्पीड मीन्स टू कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस in minimum possible time, or to cover the given distance in minimum possible time, that is speed। कि आप को एक डिस्टेंस कवर करने के लिए दे दिया है given distance, और आप कितना कम टाइम लेके उसको कवर कर रहे हो, that is your speed। this is one of the most important component of physical fitness। क्योंकि आप गेम्स में आज देखेंगे तो कोई भी गेम ले लें, अगर आप क्रिकेट ले रहे हो, आप हॉकी ले रहे हो, बास्केटबॉल ले रहे हो, फुटबॉल ले रहे हो, सभी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, और स्पीड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप स्लो हैं फील्ड में, आप फुटबॉल में आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, आपका एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, बट आपका स्पीड कम है तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आएगी। ऐसे ही सभी हमारे जो फिटनेस के कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी तरह हमारा स्पीड का कंपोनेंट भी बहुत जरूरी है। तो सिंपल वर्ड्स में अगेन फिर से बता देता हूँ, स्पीड इज एन एबिलिटी टू कवर द गिवन डिस्टेंस इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, दैट इज योर स्पीड एबिलिटी। आप अगर स्पीड में बात करें तो फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ इज उसाइन बोल्ट, सब जानते हैं क्योंकि उनका 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है टाइमिंग का। सबसे कम टाइम उन्होंने 100 मीटर की जो वो डिस्टेंस कवर किया है। तो स्पीड जो हमारी है डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसमें हमारी स्पीड डिपेंड करती है। तो सबसे जो जरूरी है दैट इज कंपोजिशन ऑफ द मसल फाइबर्स, कि आपके मसल फाइबर किस टाइप के हैं, उस पर आपका स्पीड और आपका स्पीड की एबिलिटी डिपेंड करेगी। केयरफुली आप लिसन करेंगे। दो टाइप के हमारे मसल फाइबर होते हैं, फास्ट ट्विच and slow twitched। ओके, इनको हम लोग फास्ट ट्विच को रेड फाइबर बोलते हैं एंड स्लो ट्विच को व्हाइट फाइबर। हमारा जो स्पीड है इट विल बी डिटरमाइंड बाय जो बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपके मसल फाइबर्स का कंपोजिशन आपकी बॉडी में। फास्ट ट्विच फाइबर्स अगर आपके अंदर ज्यादा है तो आपका स्पीड एबिलिटी ज्यादा रहेगा। स्लो ट्विच फाइबर्स की परसेंटेज आपकी बॉडी में ज्यादा है, वाइट मसल फाइबर आपकी बॉडी में ज्यादा है, तो आपकी जो स्पीड होगी वो कम रहेगी। बिकॉज जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहते हैं, इनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है और फोर्स उतना ही क्विकली आपकी बॉडी मूव करेगी, उतनी क्विकली आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी। और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में क्या है, इसमें जो मसल जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेंगे, और जितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो उससे उतने ही ज्यादा देर तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, तो इसलिए स्लो ट्विच फाइबर्स में क्या है, इनका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, जिसकी वजह से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं। तो अगर आप में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है तो आप में स्पीड कम होगी और आप में एंड्योरेंस लेवल ज्यादा होगा। इसलिए केयरफुली, अगर आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, वो मसल्स जल्दी थकेंगे, उन मसल्स में एनर्जी थोड़े टाइम के लिए रिलीज होगी और वो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इसलिए ये शॉर्टर पीरियड ऑफ जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं उसमें अगर आप में मसल फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितने भी स्पीडी इवेंट्स हैं, तेज खेलने वाले इवेंट्स हैं, उसमें आपके फास्ट ट्विच फाइबर्स आपको हेल्प करेंगे, और जितने भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपकी एक्सरसाइजेज हैं या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो गेम्स हैं उसमें आपको जो है स्लो ट्विच मसल फाइबर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हम लोगों ने आज अभी तक ये 3 जो कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के वो डिस्कस किए।
first is strength, second is endurance, and the third one is speed. There are two more components of physical fitness जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको भी गो थ्रू करेंगे. तो आपके ये जो फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक रहेगा वो कवर हो